بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں گرمی کی شدت میں اضافہ۔ شہریوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ لاہور میں پارہ آج پھر 42 ڈگری کی حد کو چھو گیا۔ ہوائیں تھمنے سے سانس لینے میں دشواری کا سامنا۔ ماہرین کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب کی ہدایت جاری کی گئی۔ گرمی بڑھ گئی، زمین تپ گئی، شہریوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ لاہور میں پارہ آج پھر 42 ڈگری کی حد کو چھو گیا۔ ہوائیں تھمنے سے سانس لینے میں دشواری پیدا ہو گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں شہر میں بارش کا امکان نہیں ہے۔ گرمی کی شدت جو ہے نا وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، بہت زیادہ ہے۔ آج بھی تقریباً کوئی 41-42 ڈگری سینٹی گریڈ چل رہا ہے، تو میں خاص طور پہ بائکرز کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ مطلب سیفٹی پریکاشنز لیں، ٹھیک ہے، گلوز پہنیں، ہیلمٹ پہنیں۔ ہیلمٹ چونکہ ہیلمٹ کے اندر پسینہ ضرور آتا ہے، لیکن جو اوپر سے آپ کی سورج کی ریڈیشنز ہیں، جو گرمی ڈائریکٹ آپ کے سر پہ آ کے پڑتی ہے، اس سے بہتر یہ کہ آپ ہیلمٹ پہن لیں، کم سے کم ریڈیشن سے جو ہے نا اس کی آپ لوگوں کی بچت ہوگی۔ اس حوالے سے ٹھنڈے شربت وغیرہ پئیں، بہت گرمی جا رہی ہے، اس ٹائم ٹھنڈی جگہ پہ رہیں، نہ نکلیں دھوپ پہ، گاڑی رہیں۔ پنجاب میں آج بھی ہیٹ اور گرمی کی لہر برقرار رہی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات علی اعجاز کا کہنا ہے کہ ہر آنے والے سال میں پچھلے سال کی نسبت گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے۔ گلوبل وارمنگ کے اثرات پاکستان میں دکھائی دے رہے ہیں۔ اس سال مونسون اپنے وقت سے 2 ہفتے قبل آئے گا۔ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اور ہر طرف سے ٹیمپریچر بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان جو بیڈلی افیکٹڈ کنٹریز ہے اس میں ہے، اور اس ٹائم ہمیں ایک ہیٹ ویو کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس میں ٹی ڈی ایم اے کی طرف سے ایک وارننگ بھی ایشو کی تھی کچھ دن پہلے کہ یہ جو ہیٹ ویو ہے 20 تاریخ تک کنٹینیو کرے گی، 20 مئی تک یہ کنٹینیو کرے گی۔ تو اس ٹائم تک تو ہمیں کم از کم بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جو رش والی جگہ ہیں یا بہت زیادہ کنجسٹڈ جگہ ہیں، کنکریٹ ادھر بہت زیادہ، ادھر جانے سے اوائڈ کریں۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت کی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہلکے رنگ کے کپڑے پہنیں، پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ کینال روڈ کے اطراف الیکٹرک ٹرین چلے گی۔ یلو لائن ٹرین ٹرانزٹ منصوبے کی فیزیبلٹی اسٹڈی مکمل۔ منصوبہ 24 کلومیٹر محیط ہوگا، 60 سے 80 ارب خرچ ہوں گے۔ منصوبہ جناح بس ٹرمینل سے ہربنس پورہ تک مکمل ہوگا۔ منصوبے کی تکمیل کے لیے جون 2026 کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی گئی۔ 3rd جنریشن سگنل سسٹم کی تنصیب یقینی بنائی جائے گی۔ 18 ماڈرن سمارٹ اسٹیشن ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ نے منظوری دے دی ہے۔ شہریوں کو جدید سفری سہولیات میسر آئیں گی۔ شہر میں الیکٹرک ٹرین چلے گی۔ آٹونومس ریل سسٹم منصوبہ کینال روڈ کے دونوں اطراف تعمیر کیا جائے گا۔ منصوبے کی مجموعی لمبائی 24 کلومیٹر ہوگی اور اس پر ابتدائی طور پر 60 سے 80 ارب روپے لاگت آنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ یلو لائن الیکٹرک آٹونومس ریل ٹرانزٹ منصوبے کی فیزیبلٹی اسٹڈی مکمل کر لی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے منصوبے کی منظوری دے دی۔ آٹونومس ریل سسٹم منصوبہ جناح بس ٹرمینل سے شروع ہو کر ہربنس پورہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ منصوبہ 9 سے 10 ماہ میں مکمل کیا جائے گا۔ یلو لائن منصوبے میں جدید طرز کے 18 سمارٹ اسٹیشنز قائم کیے جائیں گے، جبکہ روزانہ تقریباً 1,30,000 مسافر سفر کریں گے۔ منصوبہ آٹونومس ریل ٹیکنالوجی پر مبنی ہوگا، جو بغیر ڈرائیور بھی چلائی جا سکتی ہے۔ تاہم ابتدائی مرحلے میں ان ٹرینوں کو تربیت یافتہ ڈرائیور ہی آپریٹ کریں گے۔ آٹونومس ریل سسٹم منصوبے کے لیے چین سے 20 ٹرین سیٹ درآمد کیے جائیں گے۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کا کہنا ہے کہ یلو لائن منصوبہ لاہور کے ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر میں انقلابی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا اور شہریوں کو بین الاقوامی معیار کی پبلک ٹرانسپورٹ مہیا کرے گا۔ پاکستان کی تمام میٹروپولیٹن سٹیز کو لاہور کی طرز پر بنایا جائے۔ صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے کہا کہ کراچی اور پشاور کو لاہور دیکھ کر سیکھنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق 137 ارب روپے سے لاہور کو ماڈل سٹی بنائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا نے کہا کہ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کا مقصد تباہ حال گلیوں اور سیوریج کی بحالی ہے۔ پہلا فیز جون تک مکمل کر لیا جائے گا۔ اعلیٰ مریم نواز شریف کے لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام پر ٹاؤن ہال میں وزیر بلدیات ذیشان رفیق اور ڈپٹی کمشنر نے میڈیا بریفنگ دی۔ وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری، معاون خصوصی ذیشان ملک، راشد اقبال، ایم ڈی واسا، سی او ایم سی ایل سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے۔ سیوریج کے کام اور یہ جو گلی نالی کے کام ہے یہ تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں، اس کو بھی بڑی ہی قلیل مدت میں تقریباً کوئی 6 ماہ کا صرف ایگزیکیوشن کا ٹائم بنتا ہے، جس میں ان 6 زونز کے کام کو انشاءاللہ تعالی مکمل کیا جائے گا۔ فیروز پور روڈ پہ ڈال رہے ہیں، جہاں پہ یہ سیور ڈال رہے ہیں، راوی میں، شاہدرہ میں،
تو وہاں پہ انکنوینئنس لوگوں کو یہ نیچرل بائی پروڈکٹ ہے. بٹ واٹ وی آر ڈوئنگ از کہ ہم اس کو میکسیمائز کرا رہے ہیں کہ جتنا یہ جلدی سے جلدی کم سے کم ٹائم میں ہم اس کو کمپلیٹ کریں. ڈیٹیلس ہے زون وائز اسکیمز کی اور 252 ٹوٹل ہیں جن میں 250 پہ کام ہو رہا ہے. ایک ڈسپوزل اسٹیشن کی لینڈ ایکویشن ہے وہ بھی آلموسٹ فائنل ہوگی اور ایک اسکیم تھی جس میں باقی اسکیمز کو راستے جا رہے تھے اس میں ہم اب چیک اپ کریں گے اور وہ بھی 30 دن تک ہو انشاءاللہ. صوبائی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ جون سے مرحلہ وار اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب یقینی بنائی جائے گی. کیمرامین ثاقب بٹ کے ساتھ بسام سلطان، سٹی 42. محکمہ صحت کی ٹھیکہ پالیسی کا عمل تیز. مزید 982 بنیادی مراکز صحت ٹھیکے پر دے دیے گئے. لاہور میں مزید 6 مراکز پرائیویٹ ڈاکٹر چلائیں گے. تمام 2500 بنیادی مراکز صحت کو ٹھیکے پر دینے کا پلان. 982 بنیادی مراکز صحت ٹھیکے پر لینے والے ڈاکٹرز کی فہرست جاری کر دی گئی ہے. مجموعی طور پر 1132 مراکز ٹھیکے پر دیے جا چکے ہیں. محکمہ صحت کا پنجاب کے تمام 2500 بنیادی مراکز صحت کو ٹھیکے پر دینے کا مشن. مزید 982 بنیادی مراکز صحت ٹھیکے پر دے دیے گئے. محکمہ صحت مجموعی طور پر 1132 بنیادی مراکز صحت ٹھیکے پر دے چکا ہے. 982 بنیادی مراکز صحت ٹھیکے پر لینے والے ڈاکٹرز کی فہرست جاری کر دی گئی. لاہور کے 6 بنیادی مراکز صحت ٹھیکے پر چلیں گے. لیا میں 24، لودرا کے 33، منڈی بہاؤدین سے 14 بنیادی مراکز ٹھیکے پر چلائے جائیں گے. ڈی جی خان میں 21، فیصل آباد کے 28، گجرانوالہ کے 25 بنیادی مراکز ٹھیکے پر دیے گئے ہیں. اٹک کے 17، بہاول نگر سے 79، بہاول پور سے 49 بنیادی مراکز ٹھیکے پر دیے گئے. بھکر سے 21، چکوال سے 22، چنیوٹ سے 8 بنیادی مراکز ٹھیکے پر دے دیے گئے. گجرات سے 16، حافظ آباد سے 8، جھنگ سے 17، جہلم سے 14 بنیادی مراکز صحت ٹھیکے سے چلائے جائیں گے. سرکاری افسران کے لیے کرپشن کا دروازہ بند. افسران کو اپنے اور اہل خانہ کے اثاثوں کی تفصیلات ظاہر کرنا ہوں گی. سول سرونٹ ایکٹ کی شک 15 کے بعد شک 15A کا بھی اضافہ کر دیا گیا ہے. گریڈ 17 سے 22 کے سول افسران تمام ملکی اور غیر ملکی اثاثے ظاہر کریں گے. بدعنوانی کے خاتمے کے لیے اقدام. سول افسران کے اثاثوں کی تفصیلات پبلک کی جائیں گی. سرکاری افسران کو اپنے اور اہل خانہ کے اثاثوں کی تفصیلات ظاہر کرنا ہوں گی. گریڈ 17 سے 22 کے سول افسران اپنے تمام ملکی اور غیر ملکی اثاثے ظاہر کرنے کے پابند ہوں گے. ذرائع کا کہنا ہے کہ سول سرونٹ افسران اپنی اہلیہ اور زیر کفالت بچوں کے ملکی، غیر ملکی اثاثے اور قرض کی تفصیلات بھی فراہم کرنے کے پابند ہوں گے. سول سرونٹ افسران اپنے اور اہل خانہ کے اثاثوں کی تفصیلات FBR کو فراہم کریں گے. واضح رہے کہ سول سرونٹ ایکٹ کے شک 15 کے بعد شک نمبر 15A کا اضافہ کر دیا گیا ہے. اسکولوں میں STR سے زائد اساتذہ کو دوسرے اداروں میں منتقل کرنے کا فیصلہ. سرپلس اساتذہ کو ریشنلائزیشن کے ذریعے دوسرے اسکولوں میں بھیجا جائے گا. دوسری جانب اسکول انفارمیشن سسٹم میں اساتذہ کے آن لائن ڈیٹا میں غلطیاں. متعدد ڈیڈ لائن کے باوجود 3 لاکھ اساتذہ کا آن لائن پروفائل ڈیٹا درست نہ کیا جا سکا. اسکولوں میں STR سے زائد اساتذہ کو دوسرے اداروں میں منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. سرپلس اساتذہ کو ریشنلائزیشن کے ذریعے دوسرے اسکولوں میں بھیجا جائے گا. ریشنلائزیشن کا عمل گرمی کی چھٹیوں میں مکمل کیا جائے گا. اسکول میں سب سے زیادہ عرصے سے تعینات اساتذہ کو ٹرانسفر کیا جائے گا. دوسری جانب اسکول انفارمیشن سسٹم میں اساتذہ کے آن لائن ڈیٹا میں غلطیاں. متعدد ڈیڈ لائن کے باوجود 3 لاکھ اساتذہ کا آن لائن پروفائل ڈیٹا درست نہ کیا جا سکا. اسکول انفارمیشن سسٹم میں 3 لاکھ اساتذہ کا آن لائن ڈیٹا موجود ہے. 8 سال بعد بھی سیس ایپ میں اساتذہ کا ڈیٹا درست نہیں ہو سکا. محکمہ اسکول ایجوکیشن نے ڈیٹا درستگی کے لیے SOPs تبدیل کر دیے ہیں. CEO ایجوکیشن ڈیٹا درستگی کے بعد تصدیق شدہ سرٹیفکیٹ محکمہ اسکول ایجوکیشن کو بھجوائیں گے. آؤٹ سورس ہونے والے اسکولوں سے فرنیچر اور سولر پینل چوری ہونے کا انکشاف. فرنیچر اور سولر پینل چوری ہونے سے محکمہ تعلیم کو لاکھوں کا نقصان ہوا ہے. آؤٹ سورس ہونے والے اسکولوں سے فرنیچر اور سولر پینل چوری ہو گئے. فرنیچر اور سولر پینل چوری ہونے سے محکمہ تعلیم کو لاکھوں کا نقصان اٹھانا پڑا. ذرائع کے مطابق فرنیچر اور سولر پینل چوری کروانے میں اسکول سٹاف ملوث ہے. محکمہ اسکول ایجوکیشن نے معاملے کی انکوائری شروع کر دی ہے. محکمہ اسکول ایجوکیشن نے آؤٹ سورس اسکولوں سے انفراسٹرکچر کا ریکارڈ مانگ لیا ہے. محکمہ اسکول ایجوکیشن کے حکام کے مطابق چوری میں ملوث سٹاف کو کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی. متعلقہ سٹاف کو نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا. یاد رہے کہ 1 سال کے دوران 10,000 سے زائد سرکاری اسکول آؤٹ سورس کیے جا چکے ہیں.
मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती मनसूबे शहरों के लिए वबाल जान, अहम शहरों पर आमदोरफ्त मुतासिर, राहगीरों को परेशानी का सामना है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हसनैन ओलख से। जी हसनैन। बिल्कुल, तरक्याती मनसूबों के नाम पर शहर लाहौर को उखाड़ कर रख दिया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो तरक्याती मनसूबे हैं उनकी वजह से रास्ते जो हैं वो उखाड़ दिए गए हैं। कई ट्रैक जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं और वहाँ पर जो मशीनरी है वो मौजूद है। और मेरे अकब के ये जो मनाजर हैं, ये जो धूल उड़ाती गाड़ियाँ हैं, ये गले और सांस की जो बीमारियाँ हैं वो मुफ्त में बांट रही हैं। ये मनाजर फिरोजपुर रोड के हैं। मैं योहनाबाद के करीब मौजूद हूँ। हमजा टाउन, इसके अलावा ग्लेस्को टाउन की बात की जाए या फिर बात अन्नम रोड की बात की जाए, इसी तरह जो गजुमता है वहाँ के स्टाफ की बात की जाए या फिर चुंगी अमर सदू की, इसी तरह जो बागड़ियाँ हैं और बागड़ियाँ का जो इलाका है उसके जो हालात हैं वो भी कुछ मुख्तलिफ नहीं हैं। और दीगर शहर के जो इलाके हैं वो उखाड़े गए हैं तरक्याती मनसूबों की बुना पर, लेकिन उनको बर वक्त कंप्लीट ना करने की वजह से जो शहरी हैं वो बदतरीन अजियत का शिकार हैं। उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आने जाने वाले मुसाफिर ना सिर्फ उनको सुस्त रवि का जो ट्रैफिक है उसका सामना करना पड़ता है, ट्रैफिक ब्लॉक भी रहती है, जैम भी रहती है, रोड टूटे हुए हैं, हादसा भी रूनुमा होते हैं। और इसी के साथ साथ ये बीमारियां जो हैं वो भी बांटी जा रही हैं जो हमारी बैकग्राउंड में देखा जा सके एयर क्वालिटी इंडेक्स का बायस बन रही हैं और फ़ज़ाई आलूदगी का ये सब चीज़ें जो है सबब बन रही हैं। और जो शहरी हैं वो बहुत हद तक तंग आए हुए हैं और उनका ये कहना है कि ये जो तरक्याती मनसूबे हैं गवर्नमेंट की जानिब से जब शुरू किए जाते हैं उनका पता चलता है, लेकिन उनके आखिरी जो कंप्लीशन की डेट है उसका कोई पता नहीं होता, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनको सफ़र करना पड़ता है और शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में। ठीक है हसनैन ओलख, बहुत शुक्रिया आपका। बरकी रोड पर सीवरेज का दरीना मसला हल ना हो सका। सीवरेज का पानी जमा रहने से सड़क भी टूट फूट का शिकार, दुकानों के बाहर गंदा पानी जमा होने से कारोबार मुतासिर होने लगा। सीवरेज के पानी के बायस राहगीरों को भी मुश्किलात का सामना है। मजीद जानेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल। बिल्कुल, पैरागॉन सिटी मेन बरकी रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ के मकीनों को वासा इंतजामिया की गफलत और अदम तवज्जो के बायस बदतरीन सीवरेज मसाइल का सामना है। सड़क के ऊपर जमा जो सीवरेज पानी है वो न सिर्फ राहगीरों की आमदरफ्त को मुतासिर कर रहा है बल्कि यहाँ के जो ताजर हैं उनकी भी कारोबारी जो सरगर्मियाँ हैं वो मफलूज होकर रह चुकी हैं। और वासा इंतजामिया शिकायत के बावजूद 1.5 साल से दरपेश इस सीवरेज के मसले को हल करने में नाकाम है। मेरे साथ कुछ ताजर यहाँ के मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। बताएं जी, क्या कहेंगे आप? 1.5 साल से आपको ये बदतरीन सीवरेज मसला दरपेश है, मुश्किलात क्या क्या हैं आपको और मुतालबा क्या करेंगे? सर मुश्किलें दी हैं सारियाँ। हमने 1.5 साल हो गया ये नाला बंद है और उसके बाद हमारी दुकानदारी बहुत ज़्यादा ख़राब है, कोई कस्टमर नहीं आ रहा, हम बहुत तंग है इधर से। लेकिन दफ्तर जाके लगाई भी है, शिकायत भी लगाई उनको, लेकिन कोई नहीं हमारी सुन रहा। हम बहुत ज़्यादा तंग हैं, कोई कस्टमर नहीं आ रहा, सारा दिन किराए अपने कोलों दे रहे हैं, कोई भी नहीं आ रहा, बहुत तंग है इस वजह से। बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना है यहाँ के इलाका मकीनों को और ताजरों को। मेन सड़क के ऊपर दुकानों के बाहर सीवरेज का जो पानी है वो जमा है और कई। जी ठीक है रोमेल, बहुत शुक्रिया आपका। शाह कमाल मुतहिदा एक्शन कमेटी का वहादत कॉलोनी इंतजामिया की जानिब से गुजरगाह गेट लगाकर बंद करने पर एहतजाज। अहले इलाका के वहादत रोड पर शदीद नारेबाजी और एहतजाज। इस हवाले से मजीद बात करेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। इस वक्त जो है वो मैं वहादत कॉलोनी में मौजूद हूँ। शाह कमाल मुतहिदा इलेक्शन कमेटी की जानिब से जो है वो वहादत कॉलोनी की मेन गुजरगाह बंद किए जाने के ख़िलाफ़ जो है वो इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज जारी है। और यहाँ पर इस वक्त जो है वो जमात इस्लामी के रहनुमा अहमद सलमान बलोच भी जो है वो इस कमेटी के हमरा हैं। उनसे जानते हैं कि ये एहतजाज जो है वो उसका बाकायदा एजेंडा क्या है और ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा और कब जो है वो ये मुतालबात इनके मंजूर होने जा रहे हैं। शाह कमाल मुतहिदा एक्शन कमेटी के ने क़याम में पजीर हुई कि तमाम सियासी जमातों के अफराद इसके अंदर मौजूद थे। इन्होंने यहाँ पर मुकामी MPA से भी मुलाकात की, सियासी नुमाइंदों से भी बात की और यहाँ के जो इंतज़ामी हैं उनसे भी बात की कि ये दरवाज़े जो हैं कि वो नहीं लग सकते। आप ये देख रहे हैं कि ये दरवाज़ा के जहाँ पे हम खड़े हैं कि यहाँ पे पिलर्स लग रहे हैं और यहाँ पे दरवाज़ा लग रहा है। यहाँ की आवाम का यही मुतालबा है कि ये दरवाज़े नहीं लगने चाहिए, आम आदमी को आराम से ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। पुलिस भी यहाँ पर मौजूद थी। शदीद एहतजाज के बाद इंतज़ामिया ने इस बात पर तय किया है कि मंगल तक आप हमें वक्त दें, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि ये दरवाज़ा भी यहाँ पर नहीं होगा और आवाम के लिए रास्ता भी जो है कि वो बंद नहीं किया जाएगा। हम भी यहाँ पर इसी बात पर मौजूद हैं कि अगर मंगल तक हमें
वाज़ेह अंदाज पर पॉलिसी नहीं बताई जा सकती तो हमारे लोग जो हैं कि वो मुश्तइल भी हैं और वो अपना हक लेना भी जानते हैं। जी बिल्कुल, कहना ही था जी ठीक है इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका। एसपी सदर डॉक्टर कयूर अहमद खान का कहना है कि खातून को दौरान वारदात जख्मी करने वाले मुलजिमान समेत 6 डाकू गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गैंग एक्टिव हुआ था जिसने मुख्तलिफ दुकानों में वारदात करना शुरू की असला के ज़ोर पे और वहाँ से गन पॉइंट पे कैश छीनना शुरू कर दिया। इसी तरह एक और 2 रुकनी गैंग था जो कि नामालूम थे, जिन्होंने ख़वातीन से पर्स छीनना और मुख्तलिफ स्नैचिंग की वारदात की और जिसमें एक खातून ज़ख्मी भी हो गई वारदात के दौरान। अल्हम्दुलिल्लाह ये अरेस्ट हो चुके हैं और इन्होंने जितनी वारदातें की थी उनमें से इंकशाफात भी इनके आ चुके हैं और मज़ीद तहकीकात के लिए इन लोगों को हवाले करते हैं। अपना कमाओ अपना खाओ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तारीख रकम कर दी। सिर्फ 3 माह में 1,07,000 से ज़्यादा अफराद को 61 अरब रुपए के लोन जारी। पंजाब में पहली मरतबा 90 रोज़ में 57,913 नए कारोबार शुरू होने का रिकॉर्ड बन गया। वज़ीर आला के ज़ेर सदारत आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड बारे इजलास हुआ। इजलास में आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। MDPSIC सारा उमर ने आसान कारोबार स्कीम पर पेशरफ से आगाह किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से जमहूरिया तुर्किया के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलू ने पंजाब असम्बली में मुलाकात की, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल, मुआशी तावन और पार्लिमानी रवाबत पर तफसीली गुफ्तगू की गई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से पाकिस्तान के लिए मुसलसल हिमायत और यकजहती के जज्बात पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि तुर्क सदर की मुस्तकिल हिमायत पाकिस्तानी अवाम के दिल जीतने के मुतरादिफ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुश्किल वक्त में तुर्क अवाम की पाकिस्तान से वाबस्तगी काबिल तहसीन है। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान तुर्किया के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम देखना चाहता है। ज़री शोबे में कौमी सतह पर जिद्दत और ग्रोथ एक्शन प्लान को हतमी शक्ल देने के लिए मुशावरती इजलास सदारत वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने की। इजलास में वज़ीर ज़राअत लाइफ स्टॉक पंजाब सईद आशिक हुसैन करमानी ने भी शिरकत की। इजलास में वफाकी सेक्रेटरी ब्राइड नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च वसीम अजमल चौधरी, सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सहू, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक साकिब अली अतील, सेक्रेटरी फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज मुदस्सर रियाज मलिक, सेक्रेटरी कमोडिटीज़ एंड प्राइस कंट्रोल पंजाब मोहम्मद अजमल भट्टी, जबकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। इजलास में मेंबर PND बोर्ड असलम परवेज और डायरेक्टर जनरल ज़री इत्तलात नवीद इस्मत काहलू समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। तुर्किया के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलू के लिए रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात ख्वाजा अहमद हसन की रहायशगाह पर हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्क सफ़ीर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को मार्के हक में अज़ीम शान फतह पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि पाक अफवाज ने उम्मत मुसलमा का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है और इंडिया के खिलाफ इस तारीखी कामयाबी पर पूरी उम्मत खुश है। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। इरफान नज़ीर ओगलू ने मज़ीद कहा कि तुर्क अवाम और सदर रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान के हकीकी भाई हैं। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तरमीमी एक्ट 2025 में की गई मुतनाज़ तरमीम वापस। लाहौर चैम्बर का हुकूमत पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर, इस फैसले को बिजनेस कम्युनिटी की बड़ी कामयाबी करार दिया है। लाहौर चैम्बर के सदर मियां अबू जरशाद, सीनियर नायब सदर इंजीनियर खालिद उस्मान और नायब सदर शाहिद नजीर चौधरी ने लाहौर चैम्बर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत के फैसले को खुशाइंद करार दिया। चैम्बर की क़यादत और लाहौर चैम्बर के लीडरान ने हमेशा अगर कोई बात गलत हुई है तो सड़कों पे आए हैं। आपने देखा होगा जब ये तहरीक जो आर्डिनेंस के ऊपर आई थी उसमें भी हम सड़कों तक गए और आखिरकार गवर्नमेंट ने हमारी बात मान ली। जो हम चैम्बर के ज़िम्मेदारान हैं, कल को कोई और लोग होंगे। इसी तरह DGT ऑफिस में भी लोग बदलते हैं, हुकूमतें भी बदलती रहती हैं। मैं समझता हूँ कि किसी एक ऑफिस के अंदर बेपनाह बल्कि सारे इख्तियारात को इकट्ठा कर देना बेसिकली जो एक फंक्शनल डेमोक्रेसी है उसके खिलाफ है। हम इनको काम ना करने दें, लेकिन हम अपना काम वैसे ही करते रहे। ये अलग बात है कि जो हमारा टाइम है वो उन्होंने ज़ाया किया, करने की कोशिश की, मगर हमारा जो फोकस था चैम्बर के ऊपर, अपने वोटर्स के ऊपर, अपने सपोर्टर्स के ऊपर, उसको हमने कतई लूज नहीं किया।
मियां अबू जरशाद ने मीडिया का भी शुक्रिया अदा किया कि लाहौर चैम्बर का मौक़िफ़ अवाम और हुकूमत तक पहुंचाने में कलीदी किरदार अदा किया। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। गर्मी की छुट्टियों में प्राइवेट स्कूलों को समर कैंप लगाने की इजाज़त देने पर गौर। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने CEO एजुकेशन अथॉरिटीज़ का इजलास तलब कर लिया। पाक ऐवान तालीम फॉर प्राइवेट स्कूल्स ने गर्मी की छुट्टियों में समर कैंप लगाने की इजाजत मांग ली। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने समर कैंप की इजाजत देने के लिए CEOs का इजलास तलब कर लिया, जिसमें काजी नईम अंजुम, मेहर मोहम्मद आशिक, तुफैल बलोच और शबीर अहमद हाशमी प्राइवेट स्कूल्स की नुमाइंदगी करेंगे। राना सिकंदर हयात का कहना था कि मुफ्त समर कैंप लगाना अच्छा इकदाम है, लेकिन इजाजत देने से कबल महकमे से मशावरत जरूरी है। प्राइवेट स्कूल्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जितनी कॉन्ट्रीब्यूशन पब्लिक सेक्टर की है, बार कैफ उतनी है, उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर की भी है। तो हम प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर तालीम की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस तरह की सिमिलर एक्टिविटी हम अलाउ करें, बट इस पे फाइनल डिसीजन हम मंडे को आफ्टर थॉरो डिस्कशन विद द डिपार्टमेंट विद द CEOs हम फॉर्मली अनाउंस करेंगे। वज़ीर तालीम का कहना था कि प्राइवेट स्कूलों में स्किल्स एजुकेशन के फ़रोग के लिए मैट्रिक टेक का दाखिला भिजवाने के लिए तारीख में 30 रोज़ की तोसी दे रहे हैं। हम अपनी डेडलाइन 30 डेज के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। आए अपने बच्चों को मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी में एनरोल करें, बिकॉज विदाउट लाइफ स्किल्स, विदाउट क्रिटिकल थिंकिंग, without getting them more technologies and degrees that will help them in their future, we cannot move forward. So metric with arts and science this year, there is metric in technology. Come enroll your kids and let's plan for a better, prosperous, progressive Punjab. सरबरा पाक ऐवान तालीम काजी नईम अंजुम का कहना था कि गैर एलानिया छुट्टियों की वजह से तालीमी साल मुख्तसर रह गया है। समर कैंप में बच्चों को मुकम्मल सिलेबस पढ़ाने में मदद मिलेगी। समर कैंप इसलिए ज़रूरत है कि जो बच्चे इतना लंबा ड्यूरेशन है, वो जब स्टडी से बिल्कुल अनटच हो जाते हैं, तो फिर वो जब आते हैं दोबारा स्कूल तो उनको कुछ भी नहीं आ रहा होता। तो हमारे इसलिए ही हम चाह रहे हैं कि उनको हम बगैर किसी फीस के अपने साथ एंगेज रखें, अपने साथ इन टच रखें एजुकेशन के, ताकि वो जब ही आएँ तो उनको वो जो सिलेबस उन्होंने करिकुलम मुकम्मल किया हो वो उनको अच्छी तरह से आता हो और वो अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सकें। सूबाई वज़ीर तालीम ने काजी नईम अंजुम का नाम पेक्टा बोर्ड मेंबर की फहरिस्त में फौरी शामिल करने की हिदायत की। मुलाकात में किप्स स्कूल एंड कॉलेज नश्तर के CEO राना फयाज, मियां आतिफ, वहीद सियाल और हाफिज जावेद इकबाल राव भी मौजूद थे। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। RCDP के 25 साल मुकम्मल होने पर एक्सपो सेंटर में सिल्वर जुबली तकरीब में मुख्तलिफ अजला से फील्ड वर्कर्स ने शिरकत की। RCDP के 25 साल मुकम्मल होने पर एक्सपो सेंटर में सिल्वर जुबली तकरीब का एहतमाम। तकरीब में मुख्तलिफ अजला से फील्ड वर्कर्स के साथ साथ माइक्रो फाइनेंस सेक्टर से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। CEO मोहम्मद मुर्तजा का इजहार ख्याल करते हुए कहना था 2015 से अब तक पंजाब के 28 अजला में 20 लाख से जायद खानदानों को 95 अरब के जायद कर्जे फराहम कर चुके हैं। RCDP माइक्रो फाइनेंस से लोगों को बाइख्तियार बनाने और गुर्बत के खात्मे के लिए कोशां है। रूरल एरिया में, सेमी अर्बन एरिया में वो बड़े हुए हैं और हमारी जो आधी पॉपुलेशन है वो ख़वातीन की है। तो जिस तरह से दूसरे कंट्री में, दूसरे मुल्कों में ये जो माइक्रो फाइनेंस को जो है वो एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता है गुर्बत के खात्मे के लिए, तो वो इन ख़वातीन को छोटे छोटे कर्जे जो है वो आसान अशरात के ऊपर दिए जाते हैं। हेड ऑफ फाइनेंस मोहम्मद उस्मान का कहना था आज हमने पंजाब भर के अजला से फील्ड वर्कर्स की खिदमत को सराहने के लिए इन्हें मदऊ किया है। 12 बिलियन के से ज़्यादा हमने लोन जोन से है वो इस टाइम पे मार्केट में है। तो यहाँ पे तमाम अपने स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया गया है, उन्हें बुलाया है, उन्हें दिखाया है कि हमारी टीम ये है, ये वो लोग हैं जो ऑन ग्राउंड काम करते हैं, जो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए काम कर रहे हैं, मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी के साथ मिलकर उनकी मोबिलाइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। असिस्टेंट मैनेजर ट्रेनिंग शाहिदा रफीक का कहना था RCDP के जरिए खातीन ने न सिर्फ कारोबार शुरू किए बल्कि माले खुद मुख्तारी भी हासिल की। खातीन को डिजिटल लिटरेसी के जरिए हमने टेक्नोलॉजी से हम उनको मुतारफ़ करवा रहे हैं, उनको डिजिटल मार्केटिंग से मुतारफ़ करवा रहे हैं ताकि वो अपने जो बिजनेस है उसकी मार्केटिंग जो टूल्स टेक्निक्स है उसको इन्हेंस कर सकें। तकरीब में फील्ड वर्कर्स की खिदमत को सराहते हुए इनमें उम्रा टिकट्स के साथ साथ मोटर बाइक्स और नकद इनामात तकसीम किए गए। शानदार कल्चर परफॉर्मेंस ने भी समा बांध दिया। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। शहर भर में मार के हक में कामयाबी का जश्न मनाने का सिलसिला जारी। मिली रिक्शा यूनियन के ज़रिए इंतजाम कलमा चौक पर तकरीब, रिक्शा यूनियन अरकान की बड़ी तादाद में शिरकत, पाक फौज के हक में नारेबाजी की गई। मिली रिक्शा यूनियन के रहनुमा पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए तकरीब हुई। कलमा चौक पर होने वाली तकरीब में मिली रिक्शा यूनियन के सदर राना शमशाद ने ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब में मिली रिक्शा यूनियन के अरकान की बड़ी तादाद शरीक हुई।
हल्का PP 158 में MPA चौधरी मोहम्मद नवाज लीडर की ज़रिए क़यादत पाक फौज से इजहार यकदस्ती के लिए रैली निकाली गई। शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। पाक फौज से इजहार यकदस्ती के लिए PP 158 में रैली का इनेकाद किया गया। MPA चौधरी मोहम्मद नवाज लीडर ने रैली की क़यादत की। रैली में अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। शुरका ने हाथों में बैनर्स थामे पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। पाक फौज की खिदमात को सराहा। DS रेलवे लाहौर मियां तारिक लतीफ़ की अच्छी कारकर्दगी के हामिल मुलाजमिन की हौसला अफजाई। मुलाजमिन को तारीफी असनाद समेत कैश अवार्ड से नवाजा गया। डिवीजनल सुप्रीडेंट रेलवे लाहौर मियां तारिक लतीफ़ ने अच्छी कारकर्दगी पर रेलवे मुलाजमिन मोहम्मद इमरान और मोहम्मद साजिद, जो कि बतौर गैंग मैन ड्यूटी अंजाम दे रहे थे, उनको तारीफी असनाद से नवाजा गया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।